Hello everyone, welcome back to my Python programming series. In the today lecture, we will discuss about Python Unit 6 file handling. In this unit, we cover some concept related to file handling like file path, operations on files, error and error handling, then handling on exception and some other topics like user defined exception, import statement and from import statement. In this lecture, we cover firstly file handling. What do you understand with file handling? File handling in the Python, in the simple word, we will explain you what is a file handling in the Python. फाइल हैंडलिंग वो होता है जो हम फाइल के अंदर अपडेट कर सकें, लाइक हम फाइल को मॉडिफाई कर सकें, लाइक हाउ टू रीड द फाइल, हाउ टू लाइक update the file, how to write the file in the close path. This is file handling in the Python. फाइल हैंडलिंग का सिंपली मतलब होता है लाइक लेट टेक सम एग्जांपल. जैसे कि एक मैंने वेरिएबल स्टेट करा फाइल, और यहाँ पर मैं ओपन करूँ एक फाइल को, फाइल डॉट टी एक्स टी, और इसके बाद वी यूज हेयर दिस आर, मतलब मोड होते हैं ये फाइल के अंदर. आर मोड इज यूज फॉर रीडिंग दिस फाइल्स, W is used for writing the files, and A is for to append the data in the files. This is the mode of some mode in the files. And file path क्या होता है? File path is the exact location of the file in the system. मतलब file path एक current, मतलब जो हमारी exact location होती है, जो हमारी फाइल के अंदर हमारा रूट लोकेशन है, मतलब जो हमारी करंट लोकेशन है, वही एक सिस्टम में डिक्शनरी स्ट्रक्चर में यूज करी जाती है पाइथन के अंदर टू लोकेट एंड टू एक्सेस दी फाइल्स. यही हमारा फाइल पाथ होता है, द करंट या एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फाइल सिस्टम, दैट वी कॉल्ड हियर फाइल पाथ. फाइल फाइल पाथ टू टाइप्स के पाथ होते हैं, लाइक वी हैव एब्सोल्यूट पाथ. इसमें हम अपनी जो हमारा रूट होती है, मतलब हमने लाइक एग्जैक्ट हाउस एड्रेस, ये हमारा पूरा मतलब जो हमारी करेक्ट लोकेशन है, फुल पाथ फ्रॉम दी रूट, मतलब पूरी लोकेशन हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वही हमारी एब्सोल्यूट पाथ होता है. रिलेटिव पाथ हमारी लाइक पाथ रिलेटेड टू द करंट वर्किंग डिक्शनरी, मतलब हमारी एब्सोल्यूट मतलब करंट में जो हमारी एग्जैक्ट पाथ है उससे मिलती जुलती रिलेटिव पाथ होता है. लाइक वी हैव दिस रियल लाइफ एग्जांपल, गिविंग समवन योर एग्जैक्ट हाउस एड्रेस. This is my exact house address, so this is my absolute path. And saying that next to the market, this is my relative path. So there are two types, absolute path and relative path. And this is my method to return the current working dictionary. And this is my os.path.join is safely build path across operating system. We use file path to given the exact location of the file system. We have this example. This is my syntax. Here we import the OS module from the math या path operations, then after print the current working dictionary, then join the data file.text into one OS save path, then print the resulting combined path. Let's take this example in the VS Code. See, data file.text, in which we can import the OS module, then after print the OS module through
get CWD. Then after creating the variable path, then os.path.join the data file tag. So here we use here data to join the data, then slash dot file tags. This is the method to join the data, and after that print the path. Now this is my another path examples. Here are some key points and shortcuts to learn about the modules and method. os.get CWD. Here we import OS module. So get.cwd is a quickly way to check your current working dictionary. That's why we use here os.get CWD to check your current working dictionary. os.path.join use here to always instead of manually adding slashes. मीन्स ये हमारे स्लैसेस जोड़ देता है, स्टैंडिंग मैंडल मतलब ऐड कर देता है स्लैसेस. पाथ ए स्लैश बी क्लीन द पाथ लिव शॉर्टकट फॉर joining path that we use here path. Then after that p dot exit and p dot is slash file is used for type checks, and prefer path live is new add. This is more readable than OS path from more tasks. Here are some key points and key shortcuts. So you practice these all key shortcuts. Now we will discuss about operations on files. Python provides the built-in open functions to perform the operation like reading, writing, appending to files. This is my operation, मतलब फाइल्स को रीड करना, मतलब थ्रू दी आर मोड, मतलब फाइल्स को रीड करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, राइट करना एंड उसको रिटर्न करना. ये थोड़े मतलब ये ऑपरेशन होते हैं फाइल के अंदर. रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग टू द फाइल्स. हियर इन द प्रीवियस वी विल डिस्कस अबाउट सी files. Here we create the files, then open function, then use here file name .txt. This is my file. Then we write here w module to write the files, r module to read the files, a module to append the file, x module to insert the file, a plus add and write the file. This is my file module. In this we have some common modes like R for read, W for write, E for append, and RB and WB is my binary. Read and read line and read lines is read file content. Write and write lines is write content to the file. Always close a file after use the free system resources. The with statement automatically close the file even on errors. Real life examples: we open a notebook, then after writing some notes and closing it when you are done. This is my real life example. मतलब सिंपली ऑपरेशन का मतलब होता है फाइल के अंदर कुछ ऑपरेशंस करना थ्रू दी मोड लाइक आर मोड टू रीड, W मोड टू राइट, A मोड टू अपेंड. यही हमारे फाइल के अंदर ऑपरेशंस होते हैं. फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस ऑन फाइल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस एग्जांपल in which first line open the data.txt and 4-5 lines reopen the same file in the R mode and print the file content. Then after with ensures the file close automatically. Let's discuss about this. पहले तो हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम W मोड यूज कर रहे हैं टू राइट एज फाइल. देन उसको राइट कर दिया हमने हेलो फाइल्स.
देन उसके बाद उसे रीड कर रहे हैं, देन उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माई एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेशंस, and also this is my another examples of operations on file. Now discuss about this, in which also we write here with open to open the file name, then A4 append, then write here new line added, then with open file name, then R mode, then for file in R, then print the statement. So new file added. There is some key points and shortcuts. R for read, W for override, E for append, and X for create only. Pick modes carefully. 4 line in F. Shortcut 2 line read by मतलब लाइन को लाइन बाय लाइन रीड करना, ये हमारा 4 लाइन इन F यूज होता है. File dot read lines is written every lines as a list in one shell. Lines dot strip, quick way to remove the slash मतलब slash n from the each line. Never open a file without width, मतलब कभी भी हमें विदाउट विद के मतलब उसे ओपन नहीं करना चाहिए, विद यूज करना चाहिए हमें. एरर एंड एक्सेप्शन. एरर क्या होता है? एरर हमारा रन टाइम होता है प्रोग्राम में, हमारे सिंटैक्स एरर होते हैं, रन टाइम मतलब रन टाइम एरर होते हैं, लॉजिकल एरर होते हैं, ये हमारे एरर होते हैं. और एक्सेप्शन होते हैं हमारे रन टाइम एरर डेट अकर ड्यूरिंग एक्सेप्शन एंड कैन बी कोज्ड एंड हैंडल. मतलब एक्सेप्शन वो होते हैं, वो भी हमारे रन टाइम होते हैं, पर मतलब हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ये हमारे एक्सेप्शन होते हैं. और एरर हमारे सिंटैक्स एरर होते हैं, लॉजिकल एरर होते हैं. और ऑल्सो वी हैव रन टाइम एरर, कोड में सिंटैक्स गलत होना. सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड फ्रॉम द प्रोग्राम रन्स इनवैलिड कोड स्ट्रक्चर. लाइक अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ, तो दिस इज माई सिंटैक्स एरर. Logical error is in the calculation, and zero division error, value error, type error, index error, a key error. This is my common exception. ये exception error होते हैं. Exception is using occur during exceptions runtime error. Like we have the real example of a fire alarm going off. So this is my exception. Alert your to problem so you can respond. So this is my dash show means errors. This is the examples of some error. And this is my error. Zero division error. This is my exception. Zero division error. We handle also this. See, this is in the third line dividing by zero arithmetically. So this is zero division error at the runtime. So this is my exceptions. Here also a key error. Type E dot double slash name is a quick way to read the exceptions. Exact type error and value error is catch multiple exception types in the one line. Print E, print the exception message directly. There is some key points and shortcuts, so you will cover these. Now we will discuss about error handling. Error handling is a process of gracefully managing exception using try except blocks instead of writing the program crash. मतलब error handling हम मतलब मैनेज कर सकते हैं थ्रू दी टाइप एक्सेप्ट इंस्टेंट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम. सी इसके थ्रू
ट्राई और एक्सेप्ट है, मतलब एक्सेप्ट के थ्रू हम एरर हैंडलिंग को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम इसके थ्रू हमारा कोड क्रैश नहीं होगा और इसके थ्रू हमारा कोड ब्लॉक नहीं होगा। सो वी कैन मैनेज दिस through the try except blocks. Try blocks contain the code might rise and exceptions. Except block can only if the matching exception agar. Multiple except block can handle different exceptions types. Real life example, we having a backup plan umbrella ready in the case your primary plan. So this is my real life example of error handling. Now discuss about this example. ये हमारा एरर हैंडलिंग का एग्जाम्पल है। जैसे हमने यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट मतलब लेबल करे हैं, तो ट्राई में हमने लिखा है नम इंटीजर, एक यूजर से इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं 10 0। अगर यूजर हमें नम दे दे 0, सो ये हमारा एक्सेप्ट में चला जाएगा जीरो डिवीजन एरर में, जो कि हमारा पहले हमने देखा था। डिवीजन मतलब हम कभी भी जीरो को डिवाइड करेंगे तो हमारा जीरो डिवीजन एरर आएगा। सो ये कंडीशन हमारे एक्सेप्ट में जाकर इसका स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, वैल्यू एरर इज लाइक दैट। दिस इज माई वैल्यू एरर, मतलब हमने एक इंटीजर नहीं दिया है, हमने एक स्ट्रिंग दिया है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर वैल्यू एरर। सो try is used for the correct conditions and except is used for to error handling. Next we use here try except method logs to instead of writing the program crash. And this is also my second examples. And there is some key shortcuts and key points of error handling. Now we will discuss about handling and exceptions. Try finally cause, in which we have the finally blocks also. In previous file handling, we discussed about only the try and except codes, means blocks. Now we will discuss about try finally. Finally blocks always execute whether or not your exception occurred. Commonly used for cleanup action like closing files. That's why we use here finally close. In the previous we use here only the try and except close. But now we will discuss about finally close. Structure is try, except and last finally. Then finally runs no matter what you error catch. मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एरर आ रहा है या तुम्हारा कोड रन हो रहा है, बट फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट। Real life examples are closing and logging the office at the end of the day, no matter what happened during work hours. That's why we use here handling an exception, means try finally close. Let's discuss about this example. देखो यहाँ पर हमने ट्राई कोर्स यूज करा है, देन वी राइट हियर फाइल इक्वल टू ओपन, ओपन दिस फाइल नेम, देन प्रिंट फाइल डॉट रीड, देन आफ्टर एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड। सो फाइल नॉट फाउंड, अगर ये फाइल हमारी फाउंड नहीं होती तो ये एक्सेप्ट में चला जाएगा, बट इन दी फाइनली एक्सक्यूजन मतलब ये हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो गया है। सो नो मैटर योर कोड इज रन and not run, but finally exception means finally cause is always execute in the last. That's why we use here finally close. This is my some key points of try finally close. Order is always fixed. Try except else finally.
else run only when the try condition मतलब succeed, no exception. Finally runs in every case, success, failure, and even the written statement. Usually, finally stand to repeating the same and cleanup mode in the end except closing files connection belongs in finally not set मतलब shuttled elsewhere. Now we will discuss about raising and exceptions. User defined exception. यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन वो होते हैं जो हमारे यूजर के थ्रू होते हैं, लाइक कस्टमर जो कस्टम मतलब कस्टम एक्सेप्शन होते हैं ना क्लासेस, जब हम कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस क्रिएट करते हैं बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम एक्सेप्शन दैट वी यूज हियर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. Arise keyword manually triggered an exceptions that we use here rising the exceptions. User-defined exceptions are the custom exception classes created by inheriting from the exception. This is my user-defined exception. Rise exceptions type message manually through an exceptions. Custom exceptions are created by subclasses the exception class. A teacher diverting failing a student who did not meet the maximum या minimum attendance criteria. So this is my rising a rule, that is my rising an exception. मतलब उन्होंने अपने कंडीशन को राइज करा है कि तुम्हारी मैक्स मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए. सो ये हमारी एक राइजिंग एन एक्सेप्शन होगी. और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन वो होता है जो हम यूजर के थ्रू, जैसे हमें यूजर ने दिया कि तुम्हारा 57 मतलब 75 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए अटेंडेंस का. सो दिस इज माय यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस. लेट डिस्कस अबाउट दिस एग्जांपल. जैसे हमने क्रिएट करी है क्लास negative age class name and exceptions we use here and pass is that's then defining the method set age, then here the parameter age, then if age is greater than 0 so rise negative age error, age cannot be negative, so print age set to the age. Then here we use here try clause, then set age -5, then accept clause, negative age as e, print error e. This is my code. So my output is age cannot be negative. There here मतलब here is some key points on shortcuts of rising and user defined exceptions. So you will read all the exceptions key points. Now import method क्या होते हैं? Import method वो होते हैं जैसे कि हम import कर रहे हैं math library. So import statement is also like to import some libraries. Import statement lets a program use code, function, classes, variable defined in another module. So that we use here import statement. Syntax is import module name. Then class members using module name dot members. Multiple module can be imported on one line and across lines. Module can be renamed using as n. जैसे कि let's import module math as m, math as m. This is the short form to import the math as m. So we use here as key code organize and avoid rewriting exacting functionality. This is my real life example. This is my examples to import the math library, means math module. See, देखो हो गया. अगर मैं यहाँ पर लिख देता import math as m, so here also we write here m. So my output also similar like
previous one. This is my short form to creating math as M. Now discuss about another examples of to import statement in which we define the method, means method name greet name, then return here f hello name, then import here my module method, then after print my module dot read aditi. So also this is also similar like to previous one. So here is not my module is executing. So we creating the main file. That's why we this is not run. Here are some key points and shortcuts to import the map. From a module import name as Alice, rename as import on the fly. From module import ABC, so import several names in the single line. Never use from the module import star in the Python package. मतलब using Python package क्या होता है? Package is a collection of relative modules organized in the dictionary. Use the init constructor. In the previous, we will discuss about the init constructor, and also in the file, file handling. Also, this is also used in the file Python package. So, in the structure clause code base, internal package are strong, installed via pip. Pip install package underscore name is install the package from Python PI. A package is a folder, मतलब folder of a module. पैकेज हमारा एक मॉड्यूल होता है फोल्डर का, और मॉड्यूल हमारा एक सिंगल फाइल का, मतलब एक सिंगल पाइथन की फाइल होती है एक मॉड्यूल हमारा. पॉपुलर पैकेज हमारी नमपाई है, पांडास है, रिक्वेस्ट है, फ्लेक्स है, और पाई पी आई इस हमारा पाइथन पैकेज इंडेक्स होता है. Host thousands of open source package. Virtual environment keeps project dependencies isolated. Real life examples of Python package. A package is like a large toolbox containing several leveled sub-boxes module of relative tools. This is my real life example of using Python package. Now discuss about this example. जैसे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट, देन रेस्पॉन्स में हम एक मॉड्यूल जो हमने क्रिएट करा था इंपोर्ट में रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर अपने हमने फाइल पाथ दिया है. देन प्रिंट हियर रेस्पॉन्स डॉट स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्टेटस कोड क्या है हमारा. सो मॉड्यूल नॉट फाउंड. That's why we create here another structure dot मतलब underscore code file name in the another files and poll here. Why there are some key points and shortcuts of using Python package. Pip list is using for shows every package currently installed. Pip show package underscore name is used to quick details about a specific package. Pip freeze is used for requirement.txt. This is used for saves all the dependencies to a file. Pip install is used for install everything that file at once, and virtual environment per project avoid the version conflict. Let's discuss about what is a regular expression. Regular expression हमारे patterns होते हैं, matches होते हैं, search होते हैं, manipulate text होते हैं, और also we can access Python through the built-in re module.
So regular function is a pattern or patterns used to match, search, manipulate text, एक्सेस मतलब उन्हें एक्सेस करा जाता है पाइथन में री मॉड्यूल के थ्रू। कॉमन फंक्शन इज री डॉट मैच, री डॉट सर्च फॉर सर्च, री डॉट फाइंड all to find the text, री डॉट सर्व is used to subtract, and meta character is this special meaning, and backslash d is used for matches digit, backslash w is matches word character, and space मतलब backslash s is used for space to count matches white space। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज मतलब सिक्योरिटी आर लाइक चेकिंग आईडी कार्ड अगेंस्ट अ स्पेशल रिक्वायर्ड फॉर्मेट बिफोर allowing entry। Let's take this example। अगर हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा है री मॉड्यूल फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, देन ये हमारा एक पैटर्न है और टेक्स्ट ऑर्डर नंबर इन 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारा पैटर्न था ना ये उसको सर्च करा है एज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, देन उसके बाद प्रिंट कर दिया। तो यही हमारा एग्जाम्पल होते हैं। Now we will discuss about some key points and shortcuts of regular expression. Re find all is a shortcut of every matches in one go as a list. Re dot serve is used for find and replace in a single cell. Re dot compile मतलब compile method यूज करा जाता है प्री कंपाइल अ पैटर्न फ्रॉम अ रीयूज एंड बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ये यूनिट की समरी है। अब इसके बाद हम कुछ VS कोड में एग्जांपल करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं यूनिट 6 के रिलेटेड। जो जो हमने अभी पढ़ा है ना वो टॉपिक्स, जो टॉपिक्स हमने अभी पढ़े हैं ना उन्हीं टॉपिक्स पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इन दी टॉपिक फर्स्ट, फाइल हैंडलिंग बेसिक्स। प्रीवियस वी डिस्कस अबाउट फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, मतलब टू राइटिंग टू मॉडिफाई दी क्लोज फाइल। ये हमारा फाइल हैंडलिंग का बेसिक्स था कुछ, मतलब राइटिंग, अपडेटिंग एंड रीडिंग एंड मॉडिफाई। इन द क्वेश्चन 1, राइट अ टेक्स्ट फाइल नेम स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट। सो यहाँ पर एक फाइल वेरिएबल बनाया, देन एक ओपन यूज करा to open the file student.txt, then after we use here w mode to write the program to write some characters in this file, then file dot close, after that we close the file, then print here file created successfully। Let see this output। ओपन। अगर हमारे पास ये टेक्स्ट स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट वाली फाइल है तो ये हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। यही हम ऐसे ही हम फाइल को क्रिएट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट w मोड, राइट अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिट क्लोज। मतलब w मोड के लिए तो हम यूज कर रहे हैं राइट अ न्यू फाइल, मतलब उसके राइट करना उसके अंदर, और अगर वो फाइल एग्जिट नहीं करेगी तो उसको क्लोज कर देगा। ये क्वेश्चन 2 है, राइट हेलो पाइथन इनटू स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल। मतलब इस फाइल के अंदर हमें हेलो पाइथन लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं, पहले हम फाइल को ओपन करेंगे थ्रू दी w मोड टू क्रिएट अ न्यू फाइल, इफ एग्जिट टू क्लोज। अगर ये हमारी एग्जिट कर रही है तो उसके अंदर राइट कर दे हेलो पाइथन, देन क्लोज कर दे, फिर डाटा को सक्सेसफुली कर दे।
सो हमारा आउटपुट आएगा डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। थर्ड क्वेश्चन है रीड एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। सो हम एक वेरिएबल लेंगे फाइल्स, देन ओपन कर देंगे जो हमारा फाइल नेम है, देन रीड ऑपरेटर, रीड मोड वी यूज हेयर, देन डाटा इक्वल टू फाइल डॉट रीड, then print data, then close. So my output is Python, hello Python. In the fourth question, append welcome to the file handling to the file. So firstly create the variable name file, then open statement, then file name, then for append a, then write here file dot write, then welcome to the file handling, then close the file, then print after data appended. So answer is data appended. In the fifth question, count the number of characters in the A file. So we creating the variable name as file, then open the file name through the R mode, then read the file, then character equal to length data. So it gives me the all the character which belongs in the student dot files. So output is 39. Count the number of word in the file. अब इस फाइल के अंदर हम वर्ड को काउंट कैसे करेंगे? सो ऑल्सो लाइक सिमिलर टू द करेक्टर, count the number of lines in the file. So we creating the file variable, then open the file name, then throw the R mode, then read lines, throw all the lines, it will be read all the lines in the file name that exit in the file student.txt. so it lines मतलब ये number of lines को read कर देगा through the read lines method. Read only the first line using the read line. So we use open, then print here read dot lines, then file close. So output is hello Python. So ये हमारी first line है, मतलब print करेगा. Read all the lines using read lines. So we use previous also this method. Display file content like line by line a loop. So creating the file, then for loop line in files, then strip the lines, मतलब line को strip कर देना another line पे, then print Python welcome to the file handling, then explanations. Let's take which mode is used to read a file. So my mode is R to read the files. Which mode is used to write into a file? So W mode is to write the data. Which mode is used to add data without deleting existing content? So A mode to append the data and add the data. Which function read the entire file? So we use here read parentheses. ये हमारी पूरी एंटायर रीड कर देगा फाइल्स को. Which function read only one line? So read lines parenthesis used to read one line. Which function reads all the lines into the list? So read lines also means read line only one line, read lines only all the lines. Why is close important? It मतलब saves, change and release system resources. So we use here the close to close the files. मतलब उसके अंदर सारी एडिटिंग जो हम कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन, राइटिंग, रीडिंग, उस सब को क्लोज कर देगा. फिर उसके बाद हमारा डाटा परमानेंट हो जाएगा. Which is the difference between read and append? Rewrite is used for using the W mode, override exacting content, while append is used for using a mode to append the content to add new content to in the entire files. Let's discuss about demonstrate read mode R. मतलब इसको demonstrate करना है कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं. So we use here creating the file, open file name, then R to read mode, then print entire files through the read parenthesis, then close. So my output is hello Python.
demonstrate the W mode. So in the previous R mode we discussed, and W mode also similar like to this. We use here file equal to open, file name, W mode to write the file, then print write dot parenthesis Python program, then close, data written successfully. So output is data written successfully. Demonstrate append mode. Append mode also similar like previous one. Creating a new file in using X mode. So open file name X, file close, print file source successful. X mode create a new file, मतलब हमें नई फाइल क्रिएट करनी है तो हम X मोड यूज करते हैं. R plus mode is used also both reading and writing. So we use here R mode for read and writing. W plus mode is also used for write and read mode. A mode also similar like to append new data. Which mode override exacting data? W mode is override exacting data. Which mode is used to create a new files? X mode. Which mode allows reading and writing? R plus. Which mode is writing and reading after cleaning the file? W plus. Which mode allows appending and reading? A plus. Which function moves the file pointer? Seek. Which module is used to check whether a file exit? OS module. Which function whether check a file exit? os.path.exits. Topics. Next we have the file processing topic. In this we have some questions like display only uppercase letter from a file. So creating the variable name file, then open the file name, then R mode to read the file, then data file dot read the entire files, then for character in data, then if character is upper, print character and equal to another line. This is a method to display another lines, and also this is method no another lines, only backscape, मतलब स्पेस देने के लिए we use here and method, then close कर देंगे. सो ये हमें अपर केस लेटर देगा. अगर हमें अपर केस सेव टू दी अनदर फाइल, सो वी यूज हियर W method to override another files. अगर लोअर केस करना है तो ओपन स्टूडेंट फाइल नेम, देन R रीड कर देंगे, देन ओपन लोअर डॉट txt W, देन डाटा डॉट लोअर. सो ये लोअर केस का हमारा प्रोग्राम है. काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स इन अ फाइल. सो फाइल क्रिएट करेंगे, देन ओपन करेंगे फाइल को, फिर उसको रीड करेंगे, फिर वहां पर कंडीशन लगाएंगे 4. करेक्टर इन डाटा डॉट लोअर, अगर हमारे लोअर है वे तो इफ करेक्टर इज EIO मतलब वोवल है तो प्लस कर दे. तो उसके बाद ये हमें वोवल काउंट करके दे देगा कि कितने वोवल हैं. काउंट द नंबर ऑफ डिजिट इन द फाइल्स. नंबर ऑफ डिजिट फाइल करने के लिए वी यूज ऑल्सो 4 मेथड. लेट डिस्कस अबाउट वन वर्ड एग्जाम्पल. Which function convert the text to the upper parenthesis? Which function is used for lowercase lower parenthesis? Which function replace the text in the file? Replace method. Which function count the occurrence of the word? Count method. Which method check whether a character is uppercase? Is upper. Which method is use a digit? Is digit. Slicing in reverse. List we use here square bracket then double colon -1. It will reverse your entire list. How you search for a word in a file? Read the file using read, then use the operator or find method. Next topic is my exception handling. Exception handling के कुछ question. How to handle the zero division error? So we use here try and except clause.
we use the try except for the correct conditions and except block for the exceptions like zero division error. ये हमारे थोड़े exceptions के लिए we use the except clause. So in the try we here a मतलब यूजर से इनपुट ले रहे हैं, b के लिए भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं a फ्लोट डिवीजन नहीं है ये, a डिवीजन बाय b, फ्लोट डिवीजन इज डबल, ये डिवीजन है सिंपल. सो अगर ये हमारा b जीरो दे दे तो ये जीरो डिवीजन में चला जाएगा, तो कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो. सो दिस इज माय आउटपुट. हैंडल वैल्यू एरर, वैल्यू एरर हैंडल करने के लिए अगर हम ट्राई में एज, यूजर से एज इनपुट ले रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एज, अगर ये हमें एबीसी दे दे मतलब इंट की जगह स्ट्रिंग दे दे तो ये हमारा वैल्यू एरर में हो जाएगा. प्लीज एंटर नंबर्स ओनली. यही हमारा एक्सेप्ट हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस है, ये हमें दे देगा वैल्यू एरर बिकॉज वी राइट हियर एबीसी. सो दिस इज नॉट अ नंबर्स, सो एंटर द करेक्ट नंबर्स. हैंडल नेम एरर, नेम हैंडल करने के लिए प्रोग्राम ट्राई में हमने करा प्रिंट नेम, एग्जैक्ट नेम, अगर ये हमें नेम की जगह, इसमें तो हमने वैल्यू ही डिफाइन नहीं करा, सो ये नेम एरर है. यहाँ पे हम वेरिएबल इज नॉट डिफाइन मतलब वेरिएबल ही क्रिएट नहीं करे. अगर यहाँ हम वेरिएबल नेम क्रिएट कर देते तो ये हमारा रन हो जाता. एंटर द नेम, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाता कि हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर लिया. तो अगर हम वेरिएबल ना क्रिएट करते तो ये नेम एरर होता है, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड. टाइप एरर क्या होता है? टाइप एरर वो होता है जैसे कि यहाँ पर हम इंटीजर ले रहे हैं और यहाँ पर हम स्ट्रिंग ले रहे हैं क्योंकि ये डबल कोटे के अंदर है और इन दोनों का सम करवा रहे हैं, तो ये हमारा एक टाइप एरर होगा क्योंकि ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा स्ट्रिंग है. तो इंटीजर और स्ट्रिंग हमारा कभी भी प्लस नहीं हो सकते. अगर ये भी हमारा स्ट्रिंग होता सो दिस इज नॉट अ एरर, ये एरर नहीं होता. तो इस आउटपुट इज कैन नॉट ऐड स्ट्रिंग मतलब इंटीजर और स्ट्रिंग, तो ये हमारा टाइप एरर है. हैंडल इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर क्या होता है? इंडेक्स एरर वो होता है लाइक जैसे हमने ट्राई क्लोज यूज करा, लिस्ट बनाई 10 20 30 और प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट 1 देन प्रिंट 5. सो ये हमारा इंडेक्स एरर है क्योंकि ये हमारा 0 1 2 ओनली, इट्स 2 नॉट 5. अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता तो इट्स विल बी रन बट इट्स 5, but here not exit the 5 index, it's only have 2 index 0 1 2 not 5. So this is my index error, index out of range. So this is my index error. की एरर क्या होता है? की एरर हमारा की नोट फाउंड, लाइक वी हैव, जैसे हमने ट्राई में स्टूडेंट, ये हमने डिक्शनरी क्रिएट करी, नेम्स में राज, एज में 20 और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं मार्क्स क्योंकि हमने यहाँ पर कोई मार्क्स की ही क्रिएट नहीं करी, तो हम मार्क्स को कैसे कॉल कर सकते हैं? सो दिस इज माय की एरर. सो की नोट फाउंड. अगर मैं यहाँ पर मार्क्स लिख देता मतलब एक क्रिएट कर लेता कीज, तो ये हमारा एक सही कोड था. अगर हम यहाँ पर मार्क्स ही क्रिएट ना करें और कॉल कर दें तो ये हमारा की एरर है. फाइल नॉट फाउंड एरर मतलब फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारा फाइल नॉट फाउंड एरर में जाएगा. जैसे कि हम यहाँ पर फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं एबीसी, पर हमें फाइल ही नहीं मिली मतलब ये क्रिएट ही नहीं करी फाइल कहीं, तो ये हमारा फाइल नॉट फाउंड एरर में जाएगा. प्रोग्राम यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट, यहाँ पर हमने नम में इंटीजर मतलब यूजर से नंबर ले रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं इसके स्क्वायर, प्रिंट इनवैलिड इनपुट. अगर मैं यहाँ पर इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डाल दूं और उन दोनों को स्क्वायर कर दूं तो ये हमारा इनवैलिड इनपुट होगा. सो दिस इज वी यूज हियर ट्राई एक्सेप्शन बॉक्स.
program using try, except, and finally in the previous we discussed here, it runs never your condition fails, your condition true, your condition false, your condition not run. It's not depend upon your accept try, it's execute in whole code. मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा मतलब एक्सेप्शन गलत है या तुम्हारा कोड ही गलत है, पर फाइनली एग्जीक्यूट होगा। जैसे ट्राई में ए बी सी वी, मतलब कि ये हमारा एग्जैक्ट कंडीशन में जाएगा। जीरो डिवीजन एरर, क्योंकि ये हमारा बी हमारा जीरो है, तो 20 डिवाइड बाई जीरो, तो ये हमारा जीरो मतलब डिविजन बाई जीरो, मतलब ये आएगा। पर फाइनली भी हमारा एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम फिनिश, देखो इन दोनों का आउटपुट होगा। अगर ये कंडीशन फेल भी हो रही है ना, जब भी तुम्हारा फाइनली एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम यूजिंग ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड ब्लो फाइनली। हम यहाँ पर ट्राई में ले रहे हैं नंबर, एक्सेप्ट में कर रहे हैं नंबर वैलिड, और एल्स में डाल रहे हैं स्क्वायर, और फाइनल में डाल दिया थैंक यू। सो ये सब हमारा एग्जीक्यूट होगा। व्हाट इज एन एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर है, और वो हैंडल भी करा जा सकता है, और अगर होता है वो प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन पे, वही हमारा मतलब एक्सेप्शन होता है। Which keyword is used to handle exception? Except. Which blocks only execute finally? मतलब जो ब्लॉक हमारा ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा वो हमारा फाइनली है। When is the else block executed? When no exception occur in the try block. Which exception occur when division by zero? Zero division error. Which exception occur when converting ABC to the integer? So this is my value error. Which exception occur when accessing invalid list index? So this is my index error. Which exception occur when a dictionary key is missing? So key मतलब key error. Which exception occur when a key मतलब file does not exist? So file not found error. Why do we need exception handling? मतलब हमको उसकी जरूरत क्यों है? टू प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग टू हैंडल रन टाइम एरर, मतलब उसको रन टाइम एरर में जो मतलब जो हमारा कोड क्रैश हो रहा था थ्रू दी एरर, उसको ही हम एक्सेप्शन में यूज करते हैं टू हैंडल दी रन टाइम एरर। सो वी यूज हियर दी एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेट डिस्कस अबाउट नेक्स्ट प्रोग्राम। रीड टू नंबर एंड सेफली डिवाइड देम प्रोग्राम। ट्राई में हमने लिखा ए बी सी, एंटर द नंबर वन। बी में लिखा एंटर द नंबर टू। रिजल्ट में कर दें इन दोनों का डिवाइड। एक्सेप्ट में डाल दिया जीरो डिवीजन एरर। अगर हमारा बी जीरो हुआ, एक अगर ये हमारा फोर है और ये हमारा जीरो हुआ, तो ये हमारे कंडीशन में जाएगा कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। वैल्यू एरर, अगर हमें यहाँ पर स्ट्रिंग दे दे और डिवाइड कर रहा है इंटीजर से, तो ये हमारा वैल्यू एरर में जाएगा इनवैलिड इनपुट। और एल्स में रिजल्ट, अगर हमारा करेक्ट दिया इनपुट, अगर ये हमारा 4 4 है तो ये एल्स में जाएगा और इसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। यही होता है हमारा रीड मतलब रीड टू नंबर एंड सेफली डिवाइड बाई, मतलब सेफली डिवाइड करना। रीड अ फाइल एंटर्ड बाय द यूजर प्रोग्राम। ट्राई में फाइल नेम, इनपुट द फाइल नेम एंड फाइल ओपन, फाइल नेम रीड, then print the file entire file, then close, file not found, file not found, एक्सेप्ट में डाल दिया। तो ये भी हमारा एक सेफली कोड होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं। अगर हमारी फाइल ही एग्जिट नहीं करेगी तो ये हमें एरर दे देगा, पर हमने यहाँ पर एक्सेप्ट यूज कर लिया। सो दिस इज माई एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जाम्पल। एक्सेप्ट एज एंड हैंडल इनवैलिड इनपुट प्रोग्राम। सो ट्राई में हमने एज ली, इनपुट प्रिंट कर रहे हैं एज। वैल्यू एरर कब देता है? अगर हम इंटीजर के जगह स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो ये हमारा इंटीजर मतलब वैल्यू एरर देगा, पर हम करेक्ट कोड करेंगे तो हमारी एज प्रिंट हो जाएगी। कॉपी इवन नंबर लाइंस, मतलब कॉपी करना है इवन नंबर। सो दिस इज द प्रोग्राम। Which exception occur if a file is missing
अगर हमारी फाइल ही मिसिंग रहेगी तो ये कौन सा एक्सेप्शन देगा, ये हमें देगा फाइल नॉट फाउंड एरर, विच फंक्शन फाइंड द लॉन्गेस्ट एलिमेंट। सो ये हमारा आउटपुट आएगा मैक्स, मतलब मैक्स के थ्रू हम अपना लॉन्गेस्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। इस मतलब शॉर्टेस्ट एलिमेंट हम मिन के थ्रू, मतलब मिन के थ्रू हम यूज, मतलब मिन फंक्शन के थ्रू हम इसको लॉन्गेस्ट एलिमेंट ले सकते हैं फाइल के अंदर। सेट हमें डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके देता है, सो वी यूज हियर सेट, which function display element in reverse order. So reverse method is used for display element in the reverse order. Which function write multiple lines to a file. So write files is used for write multiple lines. Which function write a single string to the file. So write parenthesis is used for write a single string to the file. Which method read all line to a list. So by read lines, and parenthesis is used for reads all lines into a list. Which is a menu driven program. Menu driven program is a program to display a menu of functions, means options, and performs different operations based on the user choice. यही हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होता है। मिनी प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंस और मल्टीपल पाइथन कॉन्सेप्ट टुगेदर, मतलब अगर हमें कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिलाकर वर्क करना चाहिए, और एक प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग हमारी इम्प्रूव होती है उससे, और हमारी प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग भी अच्छी होती है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एग्जांपल, स्टूडेंट रिकॉर्ड प्रोग्राम। So in which we create here file variable open student.text file name, and W is used for override the program and write. Here we creating the, मतलब यूजर से नेम ले रहे हैं, रोल नंबर ले रहे हैं, मार्क्स ले रहे हैं, और यहाँ पर राइट कर रहे हैं नेम रोल नंबर स्लैश एन यूज फॉर अनदर लाइन, मतलब न्यू लाइन के लिए यूज करा है ये। देन इसको क्लोज कर दिया, प्रिंट कर दिया रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, मतलब ये रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। सो अब डिस्प्ले करेंगे, फाइल थी ओपन स्टूडेंट फाइल नेम, मतलब फाइल नेम हम अपना ओपन कर रहे हैं थ्रू दी आर मेथड टू रीड। सो ये हमारी रीड पैरेंथेसिस सारी फाइल, मतलब जो हमारी एंटायर फाइल है उसको रीड कर लेगा, देन उसको क्लोज कर देंगे। यही हमारा एक प्रोग्राम हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड प्रोग्राम। Now we will discuss about how to remove duplicate lines. मतलब डुप्लीकेट लाइंस के थ्रू वी यूज दी सेट मेथड। सेट मेथड वो होता है जो हमें डुप्लीकेट, मतलब जो भी डुप्लीकेट लाइंस है उसको रिमूव कर देता है। सो वी यूज हियर सेट। हमने एक फाइल वेरिएबल क्रिएट करा, देन ओपन कर दी हमने वो वाली फाइल जो हमारी फाइल एग्जिट करती है थ्रू दी आर मेथड रीड मोड। देन लाइंस, रीड लाइंस, ये हमारी लाइंस को मतलब रीड करेगा लाइंस बाय लाइंस। सो फिर हम यूनिक एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं लिस्ट सेट। सेट इज यूज फॉर डुप्लीकेट, मतलब रिमूव द डुप्लीकेट लाइंस, देन न्यू फाइल्स, देन ओपन यूनिक डॉट टेस्ट डब्ल्यू, मतलब जिसके अंदर हमारी सारी डुप्लीकेट आइटम रिमूव हो गया, देन उसके बाद कॉल कर दिया, देन उसको क्लोज कर दिया। शॉर्टेस्ट वर्ड, मतलब सबसे छोटा वर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं मिन फंक्शंस। लॉन्गेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं मैक्स। चलो एक कोड करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम कवर करेंगे अपने सारे मोड्स। लाइक हियर डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल फाइल्स मोड्स इन पाइथन। इस कोड के अंदर हम अपने सारे मोड डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जिट करते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। सो लेट क्रिएट द फाइल वेरिएबल फाइल
then open here. Let's create the file name demo.txt, then write this is my w mode. then उसके बाद हम फाइल डॉट राइट मेथड यूज करेंगे हेलो पाइथन। इसके अंदर हम ये जो हमारी फाइल क्रिएट करी है इसके अंदर राइट मोड के थ्रू हम फाइल के अंदर हेलो पाइथन राइट कर रहे हैं। देन उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। देन प्रिंट कर देंगे हम डब्लू मोड्स हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। अब करेंगे हम अपना दूसरा मोड फाइल मोड। अगर एक फाइल क्रिएट करते हैं फिर उसको ओपन करते हैं डेमो। एक फाइल ले लेते हैं txt फिर यहाँ पर आर मोड लेते हैं फिर फाइल्स डॉट रीड या यहाँ पर प्रिंट करते हैं \n r for new lines mode। then after print here file dot read for entire file f dot close। तो ये हमारा एक रीड फंक्शन हो गया। अब इसको टर्मिनेट करते हैं। देखो आर डब्ल्यू वाला हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने आर मोड के थ्रू हेलो पाइथन मतलब जो ये हमने ऊपर लिखा था ना इसको रीड करवा दिया। ये हमारा रीड मोड हो गया। देन एक अपेंड यूज करते हैं फाइल ओपन। यही ओपन करते हैं अपनी फाइल नेम txt तो दी अपेंड मोड या कुछ अपेंड यूज करते हैं ए। अपेंड इज फॉर ए। देन फाइल डॉट राइट हियर डेमो डॉट txt या फिर ऐसे करते हैं नेक्स्ट लाइन में /n फॉर न्यू लाइन वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। ये हमने एक राइट कर दिया फाइल डॉट क्लोज। क्लोज कर देते हैं इसको। देन प्रिंट कर देते हैं अपना नेक्स्ट लाइन में ये स्लैश मतलब बैक स्लैश जो हम यूज कर रहे हैं ना एंड ये हमें न्यू लाइन के लिए यूज कर रहे हैं। और मोड कंप्लीटेड मतलब ये मोड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा मोड करते हैं हम अपना रीड एंड राइट मोड करते हैं। तो फाइल को हम ओपन करेंगे यही फाइल ले लेते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे r+ और रीड एंड राइट मोड। फिर उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे \n के थ्रू r+ मोड। देन के बाद फिर प्रिंट करेंगे
फाइल डॉट रीड। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम हैंडल करेंगे मल्टीपल एक्सेप्शन। इसमें हम अपने सारे एक्सेप्शंस एक बार देख लेंगे। यहाँ पर हमें ट्राई क्लोज यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद एक यूजर से लेते हैं इनपुट, इंटीजर ही लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर ये यूजर हमें अपना फर्स्ट नंबर दे देगा। बी में भी लेते हैं एक इनपुट इंटीजर, एंटर दे सेकेंड नंबर। देन इसके बाद हम रिजल्ट में यूज कर लेते हैं डिवाइड मॉड्यूल। इससे हमारे सारे जो भी डाउट होंगे एक्सेप्शन के रिलेटेड ये सोल्व कर देगा सिंपली। यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करते हैं, रिजल्ट। अगर ये वाला ट्राई वाला क्लोज हमारा करेक्ट होगा तो ये प्रिंट कर देगा प्रिंट स्टेटमेंट को। फिर एक अनदर बनाते हैं लिस्ट। ये वैल्यू एरर देगा या इंडेक्स वैल्यू के लिए। यहाँ पर लेते हैं 2030। इससे हम अपना वैल्यू एरर फाइंड करेंगे। वैल्यू एरर क्या होता है? इंडेक्स वाला। तो ये हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर एलिमेंट। लिस्ट, ये वैल्यू एरर दे देगा हमें। अब एक दूसरा ले लेते हैं की वैल्यू के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट वेरिएबल बना लेते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। नेम में ले लेते हैं हम रजत। रजत और उसके एज में ले लेते हैं हम 20। फिर उसे प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट पेज मार्क्स, जो कि हमारा है ही नहीं, तो ये हमें देगा वैल्यू वाला। तो ये एक्सेप्ट में कर देते हैं हम 0 डिवीजन एरर। तो प्रिंट हियर एरर, एरर कैन नॉट डिवाइड बाय 0। मीन्स अगर ए में हमें 10 दे दिया और बी में हमें 0 दे दिया तो ये एक्सेप्ट में 0 डिवीजन एरर हो जाएगा। अब एक कंडीशन और लेते हैं एक्सेप्ट में इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्यों? क्योंकि ये हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं, जो कि हमारा इंडेक्स है 2, 0, 1, 2, पर ये तो आउट ऑफ रेंज आ रहा है ना, तो यहाँ पर इंडेक्स एरर होगा। तो एग्जैक्ट में हम एक्सेप्शन में हम डाल रहे हैं एग्जैक्ट मतलब इंडेक्स एरर। प्रिंट कर रहे हैं एरर आएगा हमारा लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। अब ले लेते हैं हम अपना लास्ट की एरर। की एरर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही थी जिसमें हमारा नेम था, एज था, पर हम कॉल कर रहे हैं मार्क्स को, पर मार्क्स तो हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं, तो ये हमारा की एरर देगा। प्रिंट कर देंगे हम अपना एरर, एरर डिक्शनरी की नोट
अब एक ले लेते हैं वैल्यू एरर। क्या पता हमें ये वेरिएबल यूजर जो है हमें बी दे दे, इंटीजर की तरह स्ट्रिंग दे दे, मतलब इंटीजर लिया है हमने तो, पर वो हमें स्ट्रिंग दे दिया, तो ये हमारा वैल्यू एरर होगा ना। तो एक वैल्यू एरर ले लेते हैं, प्रिंट एरर। तो लिस्ट या प्लीज एंटर वैलिड वैलिड नंबर। अब एक एक्सेप्ट होगा हमारा इंडेक्स एरर, की एरर भी हो गया, टाइप एरर लिखते हैं, प्रिंट हियर प्रिंट एरर एरर इनवैलिड ऑपरेशंस बिटवीन डिफरेंट डाटा टाइप। डाटा टाइप्स मतलब ये टाइप एरर क्यों लिया, अगर ये हमें टीजर की जगह स्ट्रिंग दे दे, और जो हमारा ये रिजल्ट है जो कि आर मतलब एक इंटीजर स्ट्रिंग से कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो ये हमारा टाइप एरर होगा। एंड यूज हेयर एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई प्रिंट अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। अगर इनके मतलब ये सब एरर के थ्रू भी कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाएगा, जो हमें एरर पता नहीं होगा। तो इसमें ये प्रिंट कर देगा ई। फिर उसके बाद एल्स में ले लेते हैं हम अपना प्रिंट प्रोग्राम एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली, देन फाइनली प्रिंट एंड। अब इसको टर्मिनेट करते हैं। तो एक हम हमें ले लेते हैं 10 0, तो ये आएगा हमारा कैन नॉट डिवाइड बाई 0। चेक करते हैं इसको दोबारा, अगर ये हमारा 10 है, करेक्ट लेते हैं, तो लिस्ट इंडेक्स मतलब ये तो आएगा ही हमारा लिस्ट इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ रेंज, पर इसने हमारा रिजल्ट भी प्रिंट कर दिया। यही होते हैं हमारे कोड और हैंडल दी एक्सेप्शंस। देखो हो गया। अगर मैं यहाँ पर बी ले लेता हूँ, ये हमें दे देगा एंटर प्लीज वैलिड नंबर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। राइट अ प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन यूजिंग अ मेन्यू ड्रिवन अप्रोच। मतलब ये हमें कुछ कंडीशन दे दी है, मतलब ऑपरेशन दे दिए हैं, लाइक ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, मतलब एक स्टूडेंट का न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, लाइक रोल नंबर, नेम, मार्क्स टू फाइल नेम स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। इस फाइल नेम के अंदर हमें न्यू रिकॉर्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड करना है, देन डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट रिकॉर्ड, देन सर्च फॉर अ नंबर यूजिंग द रोल नंबर, मतलब एक नंबर से हम सर्च कर सकें उसका रोल नंबर, देन काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड,
मतलब फिर उसके बाद हमें काउंट भी करना है टोटल नंबर कि कितना रिकॉर्ड है स्टूडेंट का। देन हैंडल दी फॉलोइंग एक्सेप्शंस, मतलब उसमें हमें एक्सेप्शन भी फाइंड करने हैं कि हमारा कोई फाइल तो हमारी हैंड मतलब फाइल एग्जिट करती है या नहीं करती, या हमारा कोई टाइप एरर है लाइक वैल्यू एरर, any other unexpected exceptions, use try, except else, and finally blows. The program should be continue running until the selected exits. Now let's do this code. यहाँ पर हम अपनी एक कंडीशन लेते हैं while अगर ये हमारी ट्रू है, while is true, print here slash wait, while true print बैकस्लैश n, ये करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के अंडरलाइन दे दें। फिर प्रिंट करेंगे हम फर्स्ट, फर्स्ट है हमारा ऐड स्टूडेंट। फिर प्रिंट में दूसरी कंडीशन है हमारी डिस्प्ले करना है स्टूडेंट को। फिर तीसरा बोला गया था हमें सर्च करने थे स्टूडेंट, सर्च करने थे स्टूडेंट नंबर के थ्रू। प्रिंट और था हमारा मतलब काउंट करना था रिकॉर्ड, और फिफ्थ था हमारा लास्ट में हम देंगे एग्जिट। कोड हमारा फिनिश हो गया, तो हम एक ट्राई क्लोज यूज करेंगे। ट्राई, ट्राई में हम लिखेंगे चॉइस, वेरिएबल क्रिएट करा, यूजर से लेते हैं इनपुट, एंटर योर चॉइस। देन उसके बाद इफ हमारी चॉइस जो है इज इक्वल टू 1 है, मतलब हमारी जो चॉइस इसने डाली 1 है, नंबर हमारा 1 है, तो फाइल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी ए और अपेंड। देन उसके बाद यहाँ पर एक रोल नंबर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इनपुट एंटर दी रोल नंबर। देन यहाँ पर एक नेम भी ले लेते हैं, इनपुट एंटर दी नेम। फिर यहाँ पर मार्क्स ले लेते हैं, इनपुट एंटर दी मार्क्स। कैपिटल कर, हमने ये वेरिएबल भी क्रिएट कर लिए। देन फाइल डॉट राइट रोल नंबर, रोल प्लस ये देते हैं प्लस नेम कॉमा रोल प्लस ये हमने ये ले लिया नेम प्लस कॉमा हो गया मार्क्स।
और यहाँ पर ले लेते हैं लाइन, मतलब न्यू लाइन के लिए। तो ये हम कर देंगे, फिर फाइल को कर देंगे क्लोज। देन उसके बाद प्रिंट कर देंगे, अपना रिकॉर्ड हो गया हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट। कंप्लीटेड। देन उसके बाद यहाँ पर एक इफ कंडीशन लेते हैं। अगर हमारी चॉइस 2 है तो फाइल ओपन करेंगे अपने स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट टी एच टी और फिर यहाँ पर प्रिंट कर देंगे न्यू लाइन में स्टूडेंट रिकॉर्ड को प्रिंट कर देंगे फाइल डॉट रीड। पूरी एंटायर फाइल को रीड कर लो। देन फाइल को कर देंगे क्लोज। फिर ले लेते हैं इफ चॉइस हमारी अगर 3 के बराबर हो तो यहाँ पर फाइल को ओपन करेंगे। ओपन कर दिया स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी को रीड कर लिया। देन रोल नंबर में हम लिखेंगे इनपुट एंटर रोल नंबर टू सर्च सर्च। फिर फाउंड लेंगे, अगर ये फाउंड नहीं होता फॉल्स फोर लाइन इन फाइल डाटा टू लाइन डॉट स्ट्रिप। देन यूज हेयर ऑल्सो स्प्लिट, कॉमा से स्प्लिट हो जाए। देन इफ डाटा हमारा जीरो इंडेक्स इक्वल टू रोल नंबर है तो प्रिंट कर दे रिकॉर्ड फाउंड। देन प्रिंट हो जाए उसका पहला इंडेक्स डाटा डाटा जीरो। देन प्रिंट हो जाए उसका नेम का पहला डाटा, यहाँ कॉमा आएगा डाटा वन। प्रिंट हियर मार्क्स डाटा डाटा थ्री या टू। ये हो गया। अगर हमारा ये फाउंड ट्रू होता है तो ये इसको कर दें ब्रेक। देन उसके बाद फोर में इफ नॉट फाउंड प्रिंट कर दें रिकॉर्ड
देन उसके बाद फाइल को कर दे क्लोज। अब ले लेते हैं दूसरी कंडीशन इफ चॉइस हमारी और है, तो इसमें हम फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करते हैं स्टूडेंट तो txt the r mode then count here length of file read all lines। ये मतलब फाइल की सारी लाइन को रीड कर देगा लाइन बाय लाइन्स। देन प्रिंट here total records on when file dot close। Then use here another choice। अगर प्रिंट कर दें प्रोग्राम 100 और इसको कर दे ब्रेक यहाँ पर। एल्स एल्स में चला जाए प्रिंट फाइल नॉट या वैलिड फाइल। देन उसके बाद सब में चला जाए exception as e print here print unex। यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे अनएक्सपेक्टेड एरर। और यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद एल्स में कर देंगे प्रिंट ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और फाइनली में कर देंगे प्रिंट कोड एंडेड एंड इसको रन करेंगे। सो दिस इज माय एरर। मैं इसे रिमूव कर दूँ और इसको
रन करो। पर ये हमारा इन्फिनिटी टाइम कोड रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।